Hello everyone, this is Pooja Singhal and I welcome you all to the channel Road to Libasna. And this time it's for the current affairs for the last week of July. By the end of this video, we will be completing the current affairs for the month of July 2020. So keep revising and let me know through the comment section if you have any issues in the video or if you want any other data or some other details with this video as well. So let's start with the first question. It's about Kumhar Sashaktikarana Yojana. क्या है इसके बारे में? It's an initiative of Ministry of Human Resource and Development. Kumhar Sashaktikarana Yojana of Khadi and Village Industries Commission is a statutory body. जो ये योजना of Khadi Village Industries है, ये है स्टैचुरी बॉडी है और ये इनिशिएटिव किसका है? इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. सो क्या है इसके अंदर सही जवाब? 3 से 4 चीज जो हम बेसिकली ध्यान रखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए. एमसीक्यू क्वेश्चन स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे, आंसर देने से पहले डेफिनेटली क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ेंगे. उसके बाद कहीं पे भी एक्सट्रीम वर्ड्स आता है तो उसको डबल श्योर होंगे एलिमिनेट करने से पहले, और जो भी ऑप्शन हम एलिमिनेट करेंगे उसके आगे उसका रीजन लिखेंगे व्हाई वी आर एलिमिनेटिंग दिस, सो दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल फील कॉन्फिडेंट योरसेल्फ कि आप जो आंसर्स दिए हैं वो 100% करेक्ट थे अकॉर्डिंग टू यू, कोई तुक्का नहीं था. And yes, please note down your scores because at the end of the video, you have to write the scores in your comment section so that when you'll come back for the revision, you can map your scores with the in the comment section. So yes, try to pause the video and answer it. And here you have the correct choice for this question is option B. That is two only. First is incorrect. It's an initiative of Union Home Minister distributed 100 electric power wheels to 100 trained artisans from Gandhinagar under Kumhar Sashaktikarana Yojana of Khadi and Village Industries KVIC, and it's an initiative of Khadi and Village Industries Commission. इन्हीं का initiative है वो, मिनिस्ट्री का नहीं है. इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन. सो दिस दैट्स द रीजन ऑप्शन ए वाज इनकरेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव Siddhi tribe belongs to Tamil Nadu. Siddhi tribe's member has also been nominated for the members of Legislative Council. So क्या है इसका सही आंसर? Take your time, pause the video and write down your reasons for the incorrect choice and then play again to get the correct choice. So here the correct answer is option A, that is one only. Why? Because the question is asking incorrect one. करेक्ट इनकरेक्ट से गलत होने वाले अपना काउंटर प्लीज रेडी रखें और इंक्रीज करते जाएं जो भी गलत हो रहे हैं, सो दैट यू कैन मेंशन इट एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो यस, इनकरेक्ट पूछा था. फर्स्ट इज इनकरेक्ट, इट डजंट बिलोंग्स टू तमिलनाडु, बट यस द करेक्ट वन इज इस ट्राइब के मेंबर को नॉमिनेट किया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए. दैट इज द रीजन इट वाज इन न्यूज एंड दिस ट्राइब बिलोंग्स टू कर्नाटका. Moving on to the next one, we have the world's first electrified rail tunnel fit to run double stack containers will be operational in western dedicated freight corridor. डबल स्टैक कंटेनर्स जा पाएंगे इस वर्ल्ड की फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल से. ये ऑपरेशनल होगी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में. नेक्स्ट वी हैव इट्स 1 किलोमीटर लॉन्ग टनल थ्रू अरावलीज. ये जो टनल है, नया टनल जो बन रहा है रेल टनल इलेक्ट्रिफाइड, जिसके अंदर से डबल स्टैक कंटेनर्स जाएंगे. इट्स 1 किलोमीटर लॉन्ग टनल थ्रू द अरावली हिल्स. सो क्या है इसके अंदर सही आंसर? टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट ऑन योर ओन विद द जस्टिफिकेशन. सो देयर यू गो, द करेक्ट चॉइस हियर इज ऑप्शन डी बिकॉज the question is asking incorrect ones again. So इसके अंदर से कोई भी incorrect नहीं है, दोनों बिल्कुल सही हैं. इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल पहली बार बनी है जिसके अंदर से डबल स्टैक कंटेनर्स, डबल डेकर ट्रेन्स भी जा सकती हैं, डबल स्टैक कंटेनर्स. एंड यस, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में ऑपरेशनल होगी सबसे पहले. 1 किलोमीटर लॉन्ग टनल है अरावलीज में. There you have the detailed explanation, a little bit of. Next up we have डीपी सिंह कमेटी. किसके लिए बनी है डीपी सिंह कमेटी? टू फ्रेम द गाइडलाइंस टू इंश्योर दैट मोर स्टूडेंट्स स्टे इन इंडिया एंड कंटिन्यू देयर हायर स्टडीज. हायर स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं, सो टू मेक श्योर कि वो लोग इंडिया में ज्यादा रुके इसलिए. टू इश्यू द सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स रिगार्डिंग सैनिटाइजेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मास्क ऑन द सेंटर्स. जो एग्जाम्स अभी आने वाले हैं ड्यू टू दिस कोविड, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा जब लोग एक साथ इकट्ठे होंगे, सो उसके लिए ये कमेटी बनी है. टू मेक श्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द कोविड टूल्स. कोविड टूल्स को लोग ब्लैक में बेचना शुरू ना कर दें, तो उनकी अवेलेबिलिटी मेक श्योर करने के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं. So what is the correct choice here? The correct one here is option A, to frame the guidelines to ensure
that more students stay in India and continue their higher studies. Higher study continue करने के लिए लोग इंडिया में ही रुकें, बाहर ना जाएं, इस चीज के लिए डीपी सिंह कमेटी बनाई गई है. So this one, moving on to the next, we have IBIN portal. क्या है ये IBIN portal? It aims to deliver relevant bioresources, plant, animal and other biological organisms information of India through a web portal. एक web portal से ये सारी information देने के लिए. और जो IBIN project है उसका aim क्या है? It aims to assess the likely impacts of projected climate change on the potential distribution of pied cuckoo, especially only on pied cuckoo. के ऊपर जो प्रोजेक्टेड क्लाइमेट चेंज का कोई क्लाइमेट चेंज से डिस्ट्रीब्यूशन पे जो चेंज आ रहा है, जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे कुकू के, उसके लिए है ये IBIN पोर्टल. IBIN प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ कुकू के लिए. सो मेक श्योर व्हाइल यू आर एलिमिनेटिंग द आंसर चॉइसेस एंड बी वाइज व्हाइल राइटिंग योर reasons or justifications for the elimination. So here the correct choice is C, that is both the options are correct. सही है, बिल्कुल कुकू के लिए ही बना है ये. और IBIN पोर्टल के अंदर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वेब पोर्टल के थ्रू मिलेगी. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. It is talking about the Nag River. The Nag River gets its name from the city of Nagpur. नागपुर से नाग रिवर का नाम पड़ा है. River originates from Ambazari Lake and confluence with the Kanhan River. यहाँ से originate होती है और यहाँ खत्म होती है, इसमें जाके मिल जाती है कन्हान में. About Nag River. So क्या है सही आंसर? Pause it and try to answer. So the correct choice here is option B, that is 2 only. Second is correct. बट नाग रिवर ने अपना नाम नागपुर सिटी से नहीं लिया है. इट्स अ वाइस वर्सा थिंग. नाग रिवर की वजह से सिटी का नाम नागपुर पड़ा है. सो ये उल्टा है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question is about Global Forest Report Assessment is released by. कौन रिलीज करता है ये रिपोर्ट? Ministry of Human Resource and Development, Ministry of Food and Agriculture Resources, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ द अबव. सो ऐसे जो रिपोर्ट्स और असेसमेंट बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं. सो मेक श्योर इन्हें एक स्टिकी नोट्स, मल्टीपल स्टिकी नोट्स के ऊपर आप लगा के और डेली इन्हें रिवाइज करते रहें, क्योंकि डेफिनेटली इनसे 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो ऐसे मार्क्स ना खोएं और इन्हें रिवाइज करते रहें. So for now, the correct choice here is option C, that is Food and Agriculture Organization इसे रिलीज करता है, ना कि Ministry of Food and Agriculture Resources. So here the correct choice, you can say the explanation. Moving on to the next one. करेंसी स्वैप के बारे में है. ये क्या है करेंसी स्वैप? इंडिया रिसेंटली साइंड अ करेंसी स्वैप फैसिलिटी विद श्रीलंका. श्रीलंका के साथ इंडिया ने करेंसी स्वैप फैसिलिटी साइन की है अभी रिसेंटली. अंडर दिस करेंसी स्वैप व्हेन अ कंट्री विल रिटर्न द मनी. करेंसी स्वैप में होता क्या है? आप पैसे उधार लेते हो, करेंसी उधार लेते हो दूसरे कंट्री से. सो नाउ जब आप वापस देने वाले हो, व्हेन अ कंट्री विल रिटर्न द मनी, न्यू करेंसी एक्सचेंज रेट्स विल बी एप्लीकेबल विद द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के साथ एप्लीकेबल होते हैं नए करेंसी रेट्स. सो क्या है इसके अंदर सही आंसर? टेक योर टाइम और ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ गलती करने की कोशिश मत करना. एंड यस, अगर किसी का गलत हो रहा है सो नोट डाउन दोज टॉपिक्स जो आपके गलत हो रहे हैं एंड कीप रिवाइजिंग. गो डिटेल स्टडी ऑफ दोज करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर जो भी हमारी वीडियोस हैं इनके अंदर आई ट्राई टू टेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस. अदरवाइज जो मैक्सिमम कोविड से रिलेटेड या कोई और न्यूज़ होता है, आई ट्राई टू अवॉइड दोज क्वेश्चंस, बट मेजर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. सो अगर कुछ वीडियो से रिलेटेड टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, सो प्लीज गो एंड रीड दोज टॉपिक्स. सो व्हाट इज द करेक्ट चॉइस हियर? द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन ए, 1 ओनली. सेकेंड इज इनकरेक्ट. वाई इट्स इनकरेक्ट? इंटरेस्ट के साथ तो होता है रिटर्न, लेकिन न्यू करेंसी एक्सचेंज रेट्स पे नहीं, ओल्ड एक्सचेंज रेट्स पे. जिस टाइम पे उन्होंने पैसा उधार लिया था वो टाइम का करेंसी रेट पे ही पैसे वापस होंगे विद इंटरेस्ट, नॉट विद द न्यू करेंसी रेट्स. So here you have the explanation. Moving on to the next one. Dare to Dream 2.0 is an initiative launched by. किसने लॉन्च किया है? IIT Delhi, DRDO, Ministry of Science and Tech या कोई भी नहीं. किसने लॉन्च किया है Dare to Dream 2.0? So the correct choice here is DRDO. It is launched by DRDO, Defense Research Development Organization. 5th death anniversary of President Sir Dr. APJ अब्दुल कलाम आजाद, फॉर्मर प्रेसिडेंट, इनकी एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया है Dare to Dream 2.0. नेक्स्ट वी हैव
प्री पैक्स, क्या है ये प्री पैक्स? न्यूज में था ये टर्म प्री पैक्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? So it's a new technology which is being developed to check the quality of a food before its packaging. पैक करने से पहले उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी बनाई गई है. A pre-planned process in which a financially distressed company and its creditors reach an agreement with the buyer for its sale prior to initiating insolvency proceedings. So insolvency या bankruptcy का जो principle है उसमें उस process में जाने से पहले buyer से बात करके एक agreement पे जाना is pre-pack. A new process in which a person or a company has to go for a pre-checks before the first hearing of the case. कोई केस फाइल किया है अगर आपने, चाहे आप इंडिविजुअल हो या आप कंपनी हो, आप कोर्ट जाने से पहले यू हैव टू गो फॉर अ प्री चेक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं. क्या है प्री पैक का मतलब, जो भी रिसेंटली न्यूज में था. ये कुछ टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि आप टर्म से कई बार रिलेट नहीं कर पाते हो, बट यस दीज आर इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम बिना पढ़े, जो कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते. करंट अफेयर्स अगर नहीं देखा होगा तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे. So here the correct choice is option B. That's a pre-planned process. Insolvency or bankruptcy principle IBC में जाने से पहले आप बायर के पास चले जाते हो एंड एक अग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर लेते हो बिफोर IBC से पहले. So next we have खजान एग्रीकल्चर. खजान एग्रीकल्चर कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? तमिलनाडु, गोवा, अरुणाचल या हिमाचल. क्या है ये, न्यूज में क्यों था अभी रिसेंटली? द करेक्ट आंसर इज गोवा. गोवा में प्रैक्टिस किया जाता है. रिसेंटली ये खोता जा रहा है, कम होता जा रहा है. दैट्स द रीजन खजान एग्रीकल्चर वाज इन न्यूज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव consider the following about international thermonuclear experimental reactor. इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर. ध्यान से पढ़ा करो, कई बार नाम से ही आपको सोल्यूशन मिल सकता है. Statement 1 says it is world's largest experimental facility in France. फ्रांस में है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी है. It is the most complex science project in human history which was started in 2010. 2010 में स्टार्ट हुआ था and it is the most complex science project. Third says the reactor will work on the process of nuclear fission. दो प्रोसेस होते हैं, फिजन और फ्यूजन. इट इज टेस्टिंग यू ऑन दैट. ये किस पे काम करता है? फिजन के प्रोसेस पे. फोर्थ स्टेटमेंट सेज मोर एनर्जी इज रिलीज इन फिजन एज कंपेयर टू फ्यूजन. किस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियर फिजन में या न्यूक्लियर फ्यूजन में? यू हैव फोर स्टेटमेंट्स. टेक योर टाइम, give your justification before marking the answer, or write the proper justification why you are eliminating any statement if you are doing so, and pause the video and then try to do all these things. Here the correct choice is option A, that is 1 and 2. These two statements are correct. Yes, it is the world's largest experimental facility in France and the most complex science project in the human history, और इसे 2010 में स्टार्ट किया गया था. But why 3 and 4 are incorrect? Because it works on nuclear fusion obviously, and most complex इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि फ्यूजन का प्रोसेस है. फ्यूजन का प्रोसेस इज डिफिकल्ट कंपेयर टू फिजन. फिजन में आप एक न्यूक्लियस को या एक एलिमेंट को ब्रेक करते हो मल्टीपल पार्ट्स में, बट व्हाट इज फ्यूजन? मल्टीपल पार्ट से एक एलिमेंट को कन्वर्ट करने में जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन. दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन. फ्यूजन के ऊपर काम करता है, इसीलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है. एंड मोस्ट एनर्जी इज रिलीज इन न्यूक्लियर फिजन. नो, फिजन में ज्यादा नहीं रिलीज होती है, फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. दैट्स द रीजन थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ओनली फर्स्ट एंड टू आर करेक्ट. मेक श्योर ये थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लें. Moving on to the next one, a new Supreme Court has been recently built with India's assistance. इंडिया के असिस्टेंस से नया सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है. कहाँ पे? मॉरिशस, श्रीलंका, मेडागास्कर या इनमें से कोई भी नहीं. टोटली अगर न्यूज सुना होगा तो डेफिनेटली पता होगा. कहाँ है न्यू सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया के असिस्टेंस से बना है? दैट्स इन मॉरिशस. मॉरिशस की कैपिटल सिटी पोर्ट लुइस में बना है. यस, और इट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड. वीडियो कॉल पे हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने इसको इनॉग्रेटेड किया था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट one, we have Istanbul Convention. Consider the following about Istanbul Convention. है किस लिए ये कन्वेंशन? It's a treaty aimed at preventing violence against child and women. बच्चों और औरतों के लिए जो के प्रति जो वायलेंस होता है उसको रोकने के लिए है ये इस्तांबुल कन्वेंशन. It's the world's
फर्स्ट बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू प्रिवेंट एंड टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वर्ल्ड का पहला बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है टू प्रिवेंट एंड टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसको टैकल करने के लिए फर्स्ट बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। सो व्हाट इज द करेक्ट चॉइस अमंग दीज फोर ऑप्शंस? Here the correct choice is option A, because the question is asking the incorrect one. So correct incorrect का counter जिसका गलत हुआ है वो अपना एक count increase करें, and yes, do post your score at the end of the video. Here option first is incorrect. Why? Because it's a treaty aimed at preventing violence against women, not child. This is for women, not for child. So that's the reason first statement was incorrect, and second is fine. Here you have the detailed explanation. And with this, we are at the end of the video, and thank you so much for watching. Give me a thumbs up and share it with your friends, and subscribe to the channel so that you can get the notification of this class and the other classes which we have, like CSAT and answer writing for 21. So if you want to be a part of these classes as well, so do subscribe the channel so that you get the notification of these classes. And also, if you want to be a part of daily MCQ session which is going on from last 150 days, almost 150 days, so you can ping us on this WhatsApp number or join this Telegram group for more information. And yeah, thank you so much for watching, and see you until the next time. Till then, keep revising and comment your scores in the comment section.